Hello dear students of Standard 4. How are you all? Once again I am here for you and I am going to teach you English lesson 2. Myself is Mrs. Mittal Christie, and today we are going to do our unit 1 and lesson number 2, Neha's alarm clock. Okay children, I am going to read the lesson and I am going to explain as well. Okay? So here we start. Narrator. Narrator means a person who describes the story. Here, narrator is describing us. Ring, ring, ring. Off goes the alarm clock. At 6 in the morning, Neha makes a face and covering her ears with pillow, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. अब यहाँ जो नेहा के साथ हो रहा है वो आपके साथ भी होता होगा. जब सुबह में स्कूल जाना होता है, सब सुबह जल्दी स्कूल के लिए हम रेडी होना है तो जल्दी उठना पड़ता है ना. फिर जब नींद हमारी ख़राब होती है तो वी डोंट लाइक इट. हमको ऐसा लगता है अलार्म क्लॉक कहाँ से बज गया. तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर. नेहा क्या कर रही है, अपने फेस को कवर कर रही है और क्या कर रही है, वो पीलो से अपने कान को कवर कर रही है. ओके, बट आफ्टर ऑल शी न्यू दैट के स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, उठना तो पड़ेगा ही, है ना. नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. इट्स सो अनफेयर. कितनी गलत बात है, रोज ये 6 o'clock को ये अलार्म क्लॉक मुझे उठा देता है. ओह, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स. नेहा क्या बोलती है यहाँ पे कि ओह, कितना अच्छा होता अगर मुझे थोड़ी देर ये सुबह में सोने को मिलता, और मैं ऐसा चाहती हूँ कि ये अलार्म क्लॉक है वो अपना काम भूल जाए. नरेटर, समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल्स. कुछ गिरता है और नेहा concentrating on that what is fall. Neha, oh, my clock has fallen. How happy I am. Tomorrow I can get up late. अरे वाह, what नेहा wishes it comes true. जो नेहा चाहती थी वही हो गया. ये तो नेहा चाहती थी कि अलार्म क्लॉक अपना काम भूल जाए, और यहाँ पे क्या हुआ, उसका अलार्म क्लॉक गिर गया नीचे. तो नेहा became very happy. Narrator, next morning there is no alarm, so Neha sleeps and sleeps. The small chirpy birds which come to the window sill every morning find Neha still sleeping. दूसरे दिन क्या हुआ, अलार्म तो टूट गया, अलार्म क्लॉक वॉज ब्रोकन, एंड इसलिए वो बजने वाला नहीं था. तो नेहा वॉज स्लीपिंग एंड स्लीपिंग. बट वॉट हैपन, हु डज नॉट वॉन्ट नेहा टू स्लीप. तो chirpy bird don't want Neha to sleep more. They don't want Neha to be late. Okay? So birds are saying, wake up dear, wake up fast. What the birds are saying to Neha? Wake up dear, get up, or you will be late. Narrator, Neha gets up with a start. नेहा फटाक से खड़ी हो गई, उठ गई. Neha, oh no, it's not the alarm clock, it's these birds. Why don't they leave me alone? अरे, oh no, आज अलार्म क्लॉक की जगह पे ये बर्ड्स ने मुझे सोने नहीं दिया. क्यों ये नहीं चाहती कि मैं सोई रहूं, और ये क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देती है. Birds. Narrator, even this wish of Neha's comes true. Why don't they leave me alone? अब ये जो बर्ड्स है वो नेहा को जिसने उठा दिया in place of alarm clock, who made her to awake. तो यहाँ पे जब नेहा के अलार्म क्लॉक नहीं थी तो उनकी जगह पे बर्ड्स थी
जिसने नेहा को सोने दिया नहीं. Even this wish of Neha's come true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either. दूसरे दिन क्या हुआ? ना तो अलार्म क्लॉक था ना बर्ड्स थी. दोनों जो विश थी नेहा की, they come true. But there is someone else who does not want her to miss the school bus. But in place of alarm clock as well as birds, somebody else was there who don't want Neha to be late. Who was it? Can you guess who is it? The big bright sun. Yes, the big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. The room of Neha filled with the warm smile. You know that sun is very hot. So the room is filled with the warm smile of the sun. Neha, oh my eyes, how is the sun waking me up? Why can't he let me be? क्यों ये मुझे सोने नहीं देता है सन? क्यों ये भी मुझे उठा दिया इसने मुझे? Narrator, even this wish of Neha's come true. Next morning the sun is behind the clouds, so Neha snores till the hears her mother's voice. तीसरे दिन, अब next day क्या हुआ? There was no alarm clock, no chirping birds, and no warm sun. Then who was there? Neha's mother's voice. जब आपको लेट हो जाता है तो मम्मी हमेशा चिल्लाते हैं. मम्मी हमेशा आके बोलते हैं उठ जाओ, अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर द स्कूल. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. यहाँ पे भी वही हो रहा है. नेहा के मम्मी उठाने आए. वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस. मम्मी ने क्या बोला कि उठ जाओ, गेट अप, अदरवाइज यू विल बी लेट और यू विल मिस द बस. नेहा, ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप? बाप मम्मी ने क्यों उठा दिया मुझे? ना सन है, ना अलार्म क्लॉक है, ना चीपिंग बर्ड्स है, तो मम्मी ने आज मुझे उठा दिया. नरेटर, देयर इज नो एस्केप नाउ. अब छुपने की कोई, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है. नो वे टू एस्केप. नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी. नेहा जल्दी से उठ गई और तैयार हो गई. कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे? अब सोचो कि नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा. क्या तुम गेस कर सकते हो चिल्ड्रन? नेहा wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out to her mother. Next day कोई भी नहीं था. No alarm clock, no warm sun, no chirping birds, no mummy's voice. Then who makes her to wake up? Neha, Ma, who woke me up today? Neha is asking. Neha went to her mother and she is asking to her mother कि किसने मुझे उठा दिया मम्मी? Narrator, mother smiles. मम्मी ने मुस्कुरा दिया. और मम्मी ने क्या बोला? Who else? You of course. और कौन हो सकता है? तुम अपने आप ही उठ गई हो. नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई? पर मैं तो सो रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? मदर, नाउ टेल मी, व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? मम्मी ने क्या पूछा कि व्हाई डू यू ईट लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? दोपहर में रोज 1 बजे क्यों तुम खाना खाती हो? नेहा, आई फील हंग्री, मुझे भूख लगती है. मदर, वाई डू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? अच्छा ये बताओ कि रात को रोज 9 बजे क्यों तुम सो जाती हो? नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी. नेहा इज आंसरिंग टू हर मदर दैट शी इज फीलिंग स्लीपी.
Mother, there is a clock inside you which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up. भले हमको कोई दूसरा नहीं उठाए या हमको कोई कुछ नहीं बताए, बट इनसाइड आवर बॉडी अ क्लॉक इज वर्किंग. हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर एक क्लॉक है जो हमेशा हमको प्रॉपर टाइम के बारे में इंडिकेशन देती है. ओके, कि हमको कब भूख लगती है, कब हमको नींद आती है. ओके. नेहा, ओह आई बेटर रश नाउ. अच्छा, ओह अब मुझे भागना पड़ेगा. आई डोंट वांट टू मिस द बस. मैं अभी मेरी बस मिस करना चाहती नहीं हूँ. सो आई नीड टू रश. मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे, नो नीड टू हरी बिकॉज टुडे इज संडे. और मदर इज सेइंग कि आज तो संडे है, तो आज रिलैक्स हो जाओ, बी कंफर्टेबल, नो नीड टू हरी. नेहा, ओह 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 ओह. Okay children, this story is taken by Neha's Alarm Clock by Girja Rani Asthana. Okay children, let us do the new words from the chapter. Narrator, a person who describes the story, that is called a narrator. Mutter, to say something in a very low sound, धीमे से धीमी आवाज में कुछ हम बोलते हैं, that is called mutter. Window sill, bottom part of a window, जो विंडो होती है उसके बिल्कुल नीचे का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड विंडो सील. रिलैक्स, कंफर्टेबल, कोजी, विदाउट टेंशन, टेंशन के बिना. ओके, लेट अस डू फिल अप. नेहाज क्लॉक रिंग्स एट 6 o'clock. नेहा की क्लॉक कितने बजे बजती है थी रोज? 6 o'clock. नेहा डैश व्हेन द क्लॉक रिंग्स. जब क्लॉक बजती थी तब नेहा क्या करती थी? गेट्स अप. उसे अच्छा तो नहीं लगता था, पर तो भी वो उठ जाती थी. नेहा विशेस द क्लॉक वुड डैश. नेहा की क्या विश थी? कि अलार्म क्लॉक अपना काम भूल जाए. कभी कभी अलार्म क्लॉक क्या हो जाए? फॉरगेट टू रिंग समटाइम. नेहा इज हैप्पी बिकॉज नेहा क्यों खुश हुई? क्योंकि उसकी जो विश थी इट कम्स ट्रू, वो सही हो गई. द क्लॉक फॉल्स डाउन, क्लॉक गिर गई. डैश फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल. किसने नेहा का रूम वार्म स्माइल से भर दिया? हु वॉज इट? द सन. ओके चिल्ड्रन, here we are going to start with our grammar portion of chapter 2. So today we are going to learn the use of was and where. Where to apply was and where to where. Was and were both are past tense words. Okay? अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा हिंदी में कि कहाँ पे हमको was अप्लाई करना है और कहाँ पे where. इट इज़ वेरी सिंपल. आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है. प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर इट एंड इट विल बी वेरी वेरी ईजियर टू यू. ओके. द फर्स्ट सेंटेंस, राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर. यहाँ पे हमको क्या चेक करना है? जो फिल इन द ब्लैंक्स है हमारी, उसके आगे वाला जो हमारा नाउन है, यू हैव टू चेक इट. यहाँ पे जो हमारा नाउन है वो हमको यहाँ पे कितने पर्सन दिख रहे हैं? वन और मोर देन वन. इफ देयर इज वन पर्सन देन आंसर विल बी वॉज. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, कैन यू फॉलो? ओके. फिल इन द ब्लैंक्स के आगे वाला जो हमारा नाउन है वो उसके नंबर्स हमको चेक करने. इज इट इन वन और मोर देन वन? अगर एक है तो यहाँ पे वॉज आएगा. फिल इन द ब्लैंक्स के आगे राम कितने हैं? वन. सो आंसर विल बी वॉज. सो राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर. नाउ कम टू द सेकेंड वन. द काउस डैश ग्रासिंग इन द फील्ड. अगेन व्हाट आई हैव टोल्ड, आपको याद है मैंने क्या बताया था?
फिल इन द ब्लैंक्स के आगे वाला जो हमारा नाउन है उसको चेक करना है। द काउस, काउस ज़्यादा है, मोर देन वन और वन? यस, काउस मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा है। So the answer will be where. Let us read. The cows were grazing in the field. समझ आया? Let us do the third one. My toys dash broken. My toys. Fill in the blanks हमारे यहाँ पे है। इसके आगे वाला हमारा नाउन क्या है? Toys. Okay? तो toys एक है कि ज़्यादा? Yes, ज़्यादा है, more than one. So the answer will be where. Now let us see the fourth one. Her frock dash too long. यहाँ पे ये हमारा fill in the blanks है और ये जो हमारा नाउन है वो कितना है? Her frock. तो फ्रॉक कितनी है? वन। अगर फ्रॉक्स होता तो वेयर आता, बट यहाँ पे ओनली फ्रॉक इज गिवन, सो द आंसर विल बी वॉज। ओके, यहाँ पे ऐसी और सारी दूसरे फिलअप्स यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में हमको दिए गए हैं जो आपको अपने आप होमवर्क में CW में 2 टाइम्स करनी है। यहाँ पे पेज नंबर 13 पे आपको जो ये वॉज वेयर की फिलअप्स दी है, यू हैव टू डू इट इन द होमवर्क ट्वाइसली। गॉट इट? नेक्स्ट पेज में यहाँ पे हमको क्या दिया गया है? लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। यू विल नीड दिस वर्ड्स। अब ये क्या है? तो पुल्ड आउट, इनसाइड, कॉल्ड आउट, बिहाइंड, अंडर। तो ये आपको फिलअप में लिखना है। आई लुक्ड एट अ डोर। आई लुक्ड कौन सा प्रॉपर आएगा? पुल्ड आउट आएगा, इनसाइड, कॉल्ड आउट, बिहाइंड या अंडर? तो आई लुक्ड बिहाइंड द डोर। कहाँ देख रहा है? बिहाइंड, पीछे। ओके, सेकेंड वन, आई लुक्ड एट अ कपबोर्ड। कपबोर्ड के कहाँ देख रहा है? पुल्ड आउट, इनसाइड, कॉल्ड आउट, बिहाइंड ऑलरेडी वी हैव डन इन फर्स्ट वन, और अंडर। तो क्या आएगा सेकेंड में? आई लुक्ड इनसाइड, अंदर की तरफ देख रहे हैं। ओके, so these all pictures are given here. Accordingly you have to do this exercise in your homework as well. Got it? So I will check your books when you will come to the school, so please do it without fail. Okay, till now, goodbye.